بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس۔ بڑی خبر ناظرین کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے ہیں اور بال بچ گئے ہیں۔ حملہ آور کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح کا یہ قتل کا پلان منصوبہ بنایا گیا جس طرح پاکستان کے سابق وزیر اعظم لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم کو شہید کیا گیا تھا کہ موقع واردات پر ہی قاتل کو حملہ آور کو بھی گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا تاکہ سازش کا کوئی سرا باقی ہی نہ بچے اور پتہ ہی نہ چل سکے کہ قاتل کون تھا اور کیوں آیا تھا۔ تو ناظرین اسی طرح کا واقعہ ہوا ہے پنسلوینیا ریاست ہے، وہاں پر ایک انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے تھے سابق صدر ٹرمپ کہ گولی چلی اور ان کے یہاں کان کو لگتی ہوئی، اس کو کان کو چھید کرتی ہوئی چلی گئی، اور یوں سمجھ لیں کہ 1-2 انچ کے وقفے سے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ اگر 2 انچ یا 1.5-2 انچ سر کی طرف گولی لگ جاتی تو اس وقت ٹرمپ اس دنیا میں موجود نہ ہوتے۔ اتنا خوفناک حملہ کیا گیا سنائپر رائفل سے۔ ایک 20 سالہ نوجوان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے یہ گولی چلائی اور پھر مزید گولیاں بھی چلائیں جس میں ایک اور آدمی بھی مارا گیا، اور جو پولیس ہے، مقامی پولیس تھی، FBI وغیرہ جو سیکرٹ ایجنسیاں تھیں، انہوں نے موقع پر ہی اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسے زندہ گرفتار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، اور یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ شخص حملہ آور جب ریلی کے سامنے ایک بلڈنگ تھی، ایک منزلہ بلڈنگ، اس کی چھت پر ایک گن کے ساتھ، ایک رائفل کے ساتھ رینگ رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور پولیس سے کہا، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہا کہ وہ چھت پر ایک آدمی مشکوک انداز میں رائفل لے کر گھوم رہا ہے، لیکن پولیس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اب ان پولیس والوں کی بھی انکوائری ہوگی۔ بہت عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں فوری طور پر، اور چونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی جو دنیا کا وار انڈسٹری کارٹل ہے ٹرمپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ ٹرمپ دنیا میں جنگوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ جس طرح عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ ہم جنگیں نہیں لڑنا چاہتے، یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بھی ٹرمپ یہ اعلان کر چکا ہے کہ میں 1 دن میں یہ جنگ ختم کر دوں گا۔ اسی طرح جو مشرق وسطیٰ میں جنگ جاری ہے اس کے حوالے سے بھی ٹرمپ کا ایک موقف ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ٹرمپ جو ہے وہ دنیا میں جنگیں ختم کرنے کی بات کرتا تھا، آج اس پر بھی قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح محفوظ رکھا، بچایا کہ گولی اس کے کان کو لگ کر اس کو زخمی کر کے گزر گئی۔ تھم نیل پر آپ نے تصویر ٹرمپ کی دیکھی ہوں گی تازہ ترین۔ اسی طرح عمران خان کی بھی ٹانگ میں 3 گولیاں لگیں، اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا کہ تھوڑا سا اوپر لگ جاتی تو وہ بھی شاید شہید ہو جاتے۔ تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، ان دونوں حملوں میں، ان دونوں واقعات میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اسی لیے جو عمران خان کا یقین ہے کہ جو موت کی رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، اس لیے اس نے اپنی جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے۔ ایسا ہی عزم ٹرمپ نے بھی ظاہر کیا ہے کہ حملے کے فوری بعد جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے پھر مکہ لہرایا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ باہر چلا گیا سیکیورٹی حصار میں۔ لیکن یہ ساری تفصیل جو ہے کس طرح یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، وہ اس وقت کیا کر رہے تھے ٹرمپ، کس طرح گولی چلائی گئی، اس لوگوں کا یعنی شاہدین کا کیا کہنا ہے، پھر ٹرمپ نے اس کے بعد کیا اپنی گفتگو کی، یہ ساری تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، شیئر کریں گے۔ اور لیکن ایک بات ہوگی کہ آج ٹرمپ بھی اسی کلب میں شامل ہو گیا ہے جن کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو عالمی وار انڈسٹری مشین ہے، جو عالمی وار انڈسٹری کارٹل ہے، جس کی وہ جان لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا ہے، عمران خان سے ٹرمپ تک یہ ساری کہانی ایک ہی کلب ہے۔ متاثرین کا جو نشانہ ہے، دنیا کے وہ لیڈر جو جنگیں نہیں چاہتے، ان کو جو جنگوں کا اسلحہ بنانے کا کاروبار کرنے والی دنیا کی سب سے طاقتور کارٹل ہے، سب سے طاقتور معیشت ہے، سب سے طاقتور مافیا ہے، وہ کس طرح لاشوں کی سیاست کرتا ہے، کس طرح وہ ہتھیار بناتا ہے، بیچتا ہے اور جنگیں کرواتا ہے، اور جو ان کے اپنے حکمران یا جو سیاستدان ان جنگوں کی مخالفت کرتے ہیں انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ناظرین صورتحال ہے۔ لیاقت علی خان کو بھی اسی لیے نشانہ بنایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس کلب کے ابتدائی ارکان میں لیاقت علی خان شامل ہیں، کیونکہ انہوں نے روس کے خلاف جو
अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जंग थी, पेंटागन की जो जंग थी उसमें शामिल होने से इनकार किया था, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। लियाकत अली खान के साथ भी वही सलूक हुआ जो फिर इमरान खान के साथ करने की कोशिश की गई, और आज ट्रंप से भी वही सलूक करने की कोशिश की गई है। लेकिन अल्लाह ने इमरान खान को भी बचा लिया और ट्रंप को भी बचा लिया। तो इसलिए क्या कहा जा सकता है कि एक दिन ये दोनों अपने अपने मुल्कों में हुक्मरान बनकर बैठे होंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो जंगों के ज़रिए गुर्बत और बेरोज़गारी और बदहाली और लूट मार का सिलसिला पूरी दुनिया में फैला हुआ है वो शायद ख़त्म होने की तरफ आए। तो अब नाज़रीन हम आपके साथ बात करते हैं कि ट्रंप पर जो हमला हुआ उसका क्या बना, और उस हवाले से जो FBI है उसने क्या बयान जारी किया है। सबसे पहले FBI का बयान सुन लें, फिर जो हमला हुआ उसकी सारी तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, FBI का कहना है कि जो हमला करने वाला है उसकी शनाख्त कर ली गई है। डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने वाला जो था वो 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रोक्स था। हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रोक्स के बारे में ये कहा गया है कि वो खुद रिपब्लिकन पार्टी का ही मेंबर था, रजिस्टर्ड रुकन था। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कैसी गहरी साजिश की जाती है ताकि कातलों तक कोई पहुंच ही ना सके। उसे पहले इतनी लंबी प्लानिंग थी कि उसे पहले रिपब्लिकन पार्टी का मेंबर भी बनाया गया, या जिसको चारे के तौर पर इस्तेमाल करना था, पता नहीं गोली उसी ने चलाई है या कुछ और लोग गोली चलाने वाले थे, उसे एक ऐसी शर्ट पहना दी गई जो गन कल्चर की नुमाइंदा है, और एक ऐसे यूट्यूब चैनल की वो का उस पर लोगो बना हुआ था उस शर्ट पर, जिसके 11 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। अमेरिका में आपको पता है कि गन कल्चर बहुत आम है और उसकी वीडियोस को बहुत से लोग देखते हैं। अब सिर्फ यही तासुर दिया जाएगा कि ये एक जुनूनी आदमी था, जिस तरह इमरान खान के हवाले से तासुर दिया गया कि ये एक वो मजहबी जुनूनी था और उसने इमरान खान पर ये जो इद्दत केस की वजह से जो उसने शरीयत की खिलाफ वर्जी की और उस पर हमला किया गया। तो ये नाज़रीन इस तरह के मामलात हैं। आप देखें कि कितने जालिम हैं ये आलमी वार इंडस्ट्री मशीन वाले, आर्मी वार इंडस्ट्री माफिया। तो डोनाल्ड ट्रंप पर उसने एक ऊंचे मकाम से, यानी एक सामने जो एक मंजिला बिल्डिंग थी उसकी छत से कई गोलियां चलाई, जिनमें से जो पहली गोली है वो डोनाल्ड ट्रंप के कान को लगकर गुजर गई, उसको जख्मी करते हुए, और वो जल्दी से नीचे बैठ गया। उसने मजीद गोलियां भी चलाई जिसमें एक और आदमी मारा गया, यानी टोटल 2 अफराद हलाक हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उसके 2 साथी, मुबैना साथी गिरफ्तार भी हो गए हैं। अगर ये खबर दुरुस्त है तो फिर इस साजिश का पता चल सकता है कि ये किन लोगों ने साजिश की थी। हमले के मुकाम से एक स्नाइपर राइफल भी बरामद की गई है जिसके ज़रिए हमला किया गया। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि ये हमला हुआ कैसे, और इसके हवाले से जो सबसे पहली खबर आई उसमें क्या तफसीलात दी गई थी। ये बताया गया कि फायरिंग से ज़ख्मी हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। पूरी दुनिया में एक जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई। कातलाना हमले में अमरीकी रियासत जो पेंसिल्वेनिया है उसका इलाका है बटलर, वहाँ पर एक इंतखाबी रैली थी जिससे वो खिताब करने के लिए स्टेज पर मौजूद थे कि जिस वक्त फायरिंग का वाक़या पेश आ गया। ट्रंप तकरीर के दौरान गोलियां यानी फायरिंग की आवाज़ आते ही नीचे की जानब झुक गए और रैली में भगदड़ मच गई। चंद ही लम्हे बाद लोगों ने देखा कि ट्रंप दोबारा खड़े हुए हैं, अपना मुक्का हवा में लहराया है। उस वक्त उनके दाएं कान पर खून के निशानात थे और उनकी गाल पर भी खून बह रहा था। फौरन सीक्रेट सर्विस के अहलकार ट्रंप को अपने हसार में लेकर मौके से रवाना हो गए और रैली को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट में ये कहा गया कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को एक गोली लगी है। रैली में कुल 9 से 10 गोलियां चलाई गईं। एक गोली ट्रंप के कान को छूती हुई उसे जख्मी करती हुई गुजर गई। फायरिंग से एक शख्स हलाक भी हुआ जो इस रैली में शरीक था, यानी जो गोली ट्रंप को नहीं लगी उसके पीछे जाकर किसी रैली में शरीक एक अमरीकी को लगी। 2 अफराद जख्मी भी हुए। रैली में जिस राइफल से फायरिंग की गई उसे बरामद कर लिया गया है। ट्रंप पर हमला करने वाले 3 अफराद में से एक को मार दिया गया है और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इब्तदाई बयान सामने आया है। दूसरे हमलावरों के बारे में कहा जाता है कि उनमें एक शदीद जख्मी है
जाए वकुआ से एक और मशकूक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी एक तो उसका बिल्कुल करीबी साथी करीब से पकड़ा गया और एक दूसरा जो उनको सपोर्ट दे रहा था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि रैली में फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी होने के बाद अब तबीयत बहाल है ट्रंप की, और उनके कान पर खून के निशानात हैं, लेकिन उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद वहाँ से रवाना कर दिया गया है पेंसिल्वेनिया से। ये कहा जा रहा है कि साबिक सदर का फौरी चेकअप किया गया और उनकी तबीयत बेहतर थी और उन्हें अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि उन्होंने ट्रंप के हिफाजती इंतजामात बढ़ा दिए हैं और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। ये बताया जा रहा है कि हमलावर डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेज है उससे कई सौ गज दूर मौजूद था और माहिर निशानाबाज था। हलाक किए जाने के बावजूद हमलावर की शनाख्त जो है वो सिर्फ मुख्तसर सी जाहिर की गई, जिसमें उसका नाम बताया गया है और ये नहीं बताया गया कि वो उसने क्यों हमला किया और उसके साथियों का और उसका मोटिव क्या था। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि सदर ट्रंप ने इस हमले के फौरी बाद क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस दौरान गोली चली वो उनके कान को छूती हुई गुजर गई, ताहम उनकी जान महफूज रही, जिस पर वो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। गॉड का थैंक्स गॉड कहा उन्होंने कहा कि गोली मेरे दाएं कान के ऊपर के हिस्से में लगी है। मुझे फौरी तौर पर यूँ महसूस हुआ कि कुछ हुआ है। जब बहुत ज़्यादा खून बहा तो फिर मुझे पता चला कि मुझे गोली लग गई है। ये नाकाबिले यकीन है कि हमारे मुल्क में ऐसी हरकत हो सकती है, ऐसा कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा कि गोली चलाने वाले के बारे में ताहाल उन्हें कुछ मालूम नहीं। साबिक सदर ट्रंप ने अपने जो उनका सिक्योरिटी के लोग थे उनका शुक्रिया अदा किया कि हमले के बाद एहलकारों ने उन्हें हिफाजती हिसार में ले लिया और महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया। उन्होंने कहा कि इस घिनौने अमल के दौरान फौरी हिफाजती इंतजाम किए गए, जिस पर वो शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, जिस वक्त ट्रंप पर हमला हुआ तो उस हवाले से बरतानवी मीडिया ने बड़ी तफसीलात दी हैं कि लोगों का उस हवाले से क्या कहना है। मुकामी लोगों का बड़ी खौफनाक बात की है कि उन्होंने इस हमलावर को इस हमले से बहुत पहले देख लिया था और पुलिस को उसकी निशानदही भी की, लेकिन पुलिस ने इस पर फौरी एक्शन क्यों ना लिया, ये बड़ा सवालिया निशान है। ये खबर भी सुन ले, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है नाज़रीन, हम आपके लिए लेकर आए हैं कि पेंसिल्वेनिया में एक इंतखाबी रैली के दौरान साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ उसमें महफूज रहे और गोली उनके कान को छेद करती हुई गुजर गई। इसमें ऐनी शाहिदीन के हवाले से जो बात की गई है वो ये है कि जब गोलियां चलने की आवाज़ आई तो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे उनके हामी भी फौरन ज़मीन पर लेट गए। रैली में मौजूद बीबीसी के नुमाइंदे ने बताया कि उन्हें लगा कि गोलियां स्टेज के दाएं जानब वाक़े एक मंजिला इमारत की छत से चलाई गई थी। ग्रेग नामी एक ऐनी शाहिद ने बीबीसी को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेज पर आने से 5 मिनट पहले उन्होंने एक मुश्तबा शख्स को इमारत की छत पर रेंगते हुए देखा। उनका कहना था कि उन्होंने पुलिस को इस शख्स के बारे में मुतला किया था। उसके पास राइफल थी, हमने उसे वाज़े तौर पर राइफल के साथ देखा था। हमने इस शख्स की तरफ इशारा किया। पुलिस इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी। हमने कहा कि वहाँ एक आदमी के पास राइफल है, लेकिन पुलिस को आइडिया ही नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है। नाज़रीन, जैसन नामी एक और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उसने कहा कि वहाँ 5 गोलियों की आवाज़ सुनी। उन्होंने मजीद कहा कि हमने डोनाल्ड ट्रंप की हिफाजत के लिए सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को उन पर छलांग लगाते हुए देखा। वहाँ मौजूद लोग फौरन नीचे बैठ गए। डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद खड़े हुए और अपना मुक्का हवा में लहराया और कुछ बातें की। टिम नामी एक और ऐनी शाहिद ने कहा कि उन्होंने गोलियों की बौछार सुनी। हमने ट्रंप को ज़मीन पर बैठते हुए देखा और फिर हर कोई ज़मीन की तरफ झुक गया था क्योंकि वहाँ हर तरफ अफरा तफरी फैल गई थी। वारन और डेपी भी उन अफराद में शामिल थे जो डोनाल्ड ट्रंप की रैली में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने फौरी तौर पर वहाँ मौजूद लोगों को नीचे झुकने का कहा। वारन कहती हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब यहाँ अमेरिका में हो रहा है और साबिक सदर की रैली में हो रहा है।
बेबी कहती हैं कि उन्होंने वहाँ एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा जो मरना नहीं चाहती थी और कह रही थी ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जो दुनिया है उसको वॉर इंडस्ट्री माफिया ने यरगमाल बनाया हुआ है। जो भी उसके खिलाफ बोलता है उसे निशाने इबरत बना दिया जाता है। लियाकत अली खान से शुरू होती हुई ये कहानी इमरान खान तक पहुंची और फिर आज डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गई है। और आप यूं कह सकते हैं कि पहले ये दूसरे ममालिक में ये जो वार इंडस्ट्री माफिया है लोगों का कत्ल करता था, आज ये अपने ही मुल्क में सुपर पावर अमेरिका में मुस्तकबिल के सदर को और माजी के सदर को कत्ल करने की कोशिश कर रहा था। और इतना फूल प्रूफ उसने ये मंसूबा बनाया कि साथ ही हमलावर को भी फौरी तौर पर मौका पर ही गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जैसा कि लियाकत अली खान वाले केस में हुआ था। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। एक्सक्लूसिव खबरें और ऐसी ही रिसर्च बेस्ड जो स्टोरियां हैं वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।